चांद में खोए हो उठे हो सितारों में गाओ तब क्या जरा उलझे हो सितारों में क्यों चांद में खोए हो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह उलझे हो सितारों में और आका को मेरे ढूंढो कुरान के बाद क्या मतलब पढ़ा आपने? शब्बीर भाई को बड़ा ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ पसंद है क्योंकि शेर को ये बाहर निजामत भी माशाल्लाह बोलते हैं जी 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 पसंद है। जब वो शेर इनको याद था मुझे खुद याद नहीं था पेश कर रहा हूँ समाज फरमाया नवाजिश करम ऐ काश कबूतर भी हर इंसान की तमन्ना और ख्वाहिश यही होनी चाहिए मेरे आका को ऐ काश कबूतर भी बन कर के रहे भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे सरकार कबूल कर ले वो कबूतर जो सरकार की रोज़ के हाजिरी ऐ काश कबूतर भी बन कर के रहे होते ऐ काश कबूतर भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बन कर के रहे होते और उस गुंबद खजरा के सुभान अल्लाह हाय हाय अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छे और नूर मीनारों में सुभान अल्लाह सरकार कबूल कर ले माशाअल्लाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद कि सरकार की उल्फत में मरते हैं जो हमारी आखिरी शेर जो मैं पेश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखिए हमारे हाजी साहब भी तशरीफ लाए वकील भाई साहब आ गए बहुत देर के बाद वकील भाई आए हैं लग रहा कल परसों बजट सब निकल चुका था इसीलिए वो ताखीर कर गया चलिए माशाअल्लाह कुछ उजरत की वजह से घरेलू काम की वजह से ताखीर करके आए हैं अल्लाह ताला इनकी और हम सब की हाजिरी हमारे हाजी अल्लाह आपके वालिद गिरामी तशरीफ लाए बहुत दूर के पड़ाव में रहते हैं वहाँ से आए मालूम हुआ उनको कि आज हमारे सलीम भाई के यहाँ दोषा है वो भी आए सुबहान अल्लाह के वकील भाई के यहाँ घर पे मकान तोशे का एहतमाम और ये फातिहा खानी या मस्जिद का एहतमाम था अल्लाह ताला इन तमामी आज़ीज़ के सारी के साथ जो बुजुर्गों की बारगाह में पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमाए आमीन आमीन शेर जो 5 मिनट की गुफ्तगू मेरी होगी वो शेर में पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाए सरकार की उल्फत में मरते हैं जो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सरकार की उल्फत में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मरते हैं जो रह
اللہ کے بندے بھی زندہ ہے مزار نعرے تکبیر نعرے رسالت احسان اولیاء اکرام علامہ شہاب الدین صاحب قبلہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد بہت حضرت کیا خوب پڑھ رہے بھائی سبحان اللہ علی صاحب آ گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اچھا اچھا شکریہ رکھ لیجئے علی صاحب کا تحفہ ماشاءاللہ کہ اللہ کے بندے بھی دینار شفیع ہے جو حاجی جی دے رہے رکھ لیجئے جی زندہ ہے مزار بہت اچھا ماشاءاللہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا اللہ نے عطا کی ہے مومن کو روشنی پھولوں سے یہ چراغ بجھایا اپنے قبروں میں زندہ ہے نبی فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الى دار کہ اللہ کے ولی اللہ کے برگزیدے بندے اللہ کے نیک بندے جس کے سینے میں نبی کی محبت ہوتی ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے یعنی اللہ والے مرتے نہیں ہیں بلکہ جگہ بدل دیتے ہیں مکان بدل دیتے ہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں جیسے وہ کل زندہ تھے آج بھی اپنے قبر انور میں الحمدللہ وہ زندہ ہیں قیامت تک وہ زندہ رہیں اس غوث اعظم کی محبت میں ہم اور آپ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے پاک محفل پاک میں شرکت کرنے کی ہم نے اور آپ نے سعادت حاصل کی ہے اس اللہ کے مقدس ولیوں کی محبت میں جو الحمدللہ دنیا سے کوش کرنے کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی وہ زندہ ہے اور بالخصوص حضور سیدی سرکار غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد توشے کا اہتمام اور انتظام ہے اس کی نظر ہوگی اور یہ بڑی بابرکت فاتحہ ہے بڑا یہ ثواب ہے کہ جو لوگ توشے کی نظر اپنے گھروں پہ کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دیوانوں کی دیوانگی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سیدی سرکار غوث اعظم سبحان اللہ ہم لوگ شوکت علی پارک کے سامنے سلیم بھائی کے مقام پر بیٹھے ہیں مگر الحمدللہ ہم یہاں سے غوث اعظم کو پکارتے ہیں وہ بغداد میں رہ کر ہماری اور آپ کی فریاد کو سن رہے ہیں بلکہ الحمدللہ ہمیں اور آپ کو غوث اعظم بغداد میں رہ کر قبر انور میں رہ کر ہمیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اللہ نے وہ پاور دیا ہے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے میرے دوست اور بزرگوں اتنا وقت نہیں کہ تفصیلی گفتگو ہو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مریدین ایک بار ایک کشتی پہ سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے اچانک جب سمندر کے بیچوں بیچ میں یہ تمام مریدین جو کشتی پر سوار تھے 200-250 لوگ یہ اچانک کشتی میں پانی آ گیا اور سارے لوگ ڈوبنے لگے جب سب نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کشتی میں پانی آ چکا ہے اور سمندر میں گوتا کھانے والی ہے کشتی سب تباہ ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے سب انتقال مر جائیں گے جب دیکھا کوئی بچنے کا چارہ نہیں کسی بھی طریقے سے ہم کشتی کو کنارہ نہیں لگا سکتے اب ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے تو مصیبت میں یا تو آدمی گھر میں کوئی بچہ تڑپتا بھوک کے مارے تو ماں کو پکارتا ہے یا باپ کو پکارتا ہے یا پھر گھر کے کسی فریاد کو پکارتا ہے مگر اس سمندر میں اس ندی میں اس دریا میں اب ان کے چاہنے والے غوث اعظم کے یہ سب مرید تھے اب یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر ماں کی ممتا یا باپ کی محبت یا گھر والوں کی فریاد پر گھر والوں کو فریاد کریں گے تو ہماری یہاں پر کوئی مدد نہیں کرے گا بلکہ مدد وہ کرے گا جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے یہ آج زندہ ہے کل بھی یہ زندہ رہیں گے اور الحمدللہ قیامت تک اپنے قبروں میں زندہ رہیں گے تو سب سے
से ज्यादा मोहब्बत किससे है? अल्लाहु अकबर। देखा माँ से ज्यादा मोहब्बत एक वली से है, बाप से ज्यादा मोहब्बत एक वली से है, भाई से ज्यादा मोहब्बत एक वली से भी है, वली से है। देखा रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत एक वली से है। और इन सब से जब वलियों की मोहब्बतें जब इंतहा हो जाती है तो वहीं से नबी की मोहब्बत शुरू होती है। तो वली की मोहब्बत, अल्लाहु अकबर। कहा किससे पुकारा जाए, किससे फरियाद किया जाए, किससे बुलाया जाए? तो उस वक्त 200-250 लोगों ने जो कश्ती पे सवार थे सबने कहा या गौस अल-मदा, या गौस अल-मदा। जैसे इतना पुकारा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा लोगों ने जो मुरीदीन सवार हैं 200-250 लोग हैं, सबने देखा कि एक हाथ नमूदार हुआ और उस हाथ ने कश्ती को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे किनारे कर दिया। अब अल्लाह का शुक्रिया सबने अदा किया कि हम अभी थोड़ी देर में गर्क हो जाते, डूब जाते, हलाक हो जाते, मर जाते, मगर ये किसका हाथ है जिसने हमें जिंदगी दी है? ये किसका हाथ है जिसने हमको डूबने से बचाया है? ये किसका हाथ है जिसने हमको मरने से बचाया है? अल्लाहु अकबर। ये सोचते रहे, मगर नमाज सोचते रहे। ये तमाम मुरीदी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कौन है जिसने हमें जिंदगी दी है? कौन है जिसने हमें मरने से बचाया है? कौन है जिसने हमको डूबने से बचाया है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तमाम लोगों ने आपस में मशवरा किया, हर एक दूसरे लोग से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मगर कौन है उसमें अल्लाह का दीवाना? कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जो बता देता कि अल्लाह पर बचाने वाला कोई और नहीं, बगदाद का शहंशाह है? कौन है जो बता देता कि कोई और नहीं, अजमेर का राजा है? कौन है जो बता देता कि कोई और नहीं, मखदूम सिमनान है? कोई और नहीं, कौन था जो बता देता? अल्लाह अकबर। तमाम मुरीदों ने सोचा, सुनो सुनो, हम एक दो महीने के बाद हम बगदाद के तरफ से एक काफले के साथ हम गुजरेंगे, हम कहीं नहीं तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाएंगे, गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे और जाने के बाद वहीं उनसे पूछेंगे, हजरत आप भी बता दें 2 महीने पहले हम लोग एक कश्ती पे सवार थे, डूब रहे थे, मरने वाले थे, अचानक एक हाथ का नमूदार हुआ जिसने हमें जिंदगी दे दी, हमें मरने से बचा लिया। हम अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पूछेंगे। अल्लाह अकबर। सब खामोश वहां से फिर चले गए जहां जहां जिनको जाना था। 2 महीने के बाद ये काफले वाले बगदाद के करीब से गुजरे तो सबने कहा चलो गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं, अब्दुल कादिर की बारगाह में चलते हैं, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की बारगाह में ये तमाम लोग आए और आने के बाद सबने मुसाफा मुआनका किया, सलाम किया और उसके बाद कहा हजरत 2 महीने पहले हम लोग एक कश्ती पे सवार कहीं जा रहे थे, अचानक कश्ती दरिया में डूबने लगी, गर्क होने लगी। हम सबको ये गुमान हो गया था, हम सब ने ये समझ लिया था कि अब हम बचेंगे नहीं, हम डूब जाएंगे, हम गर्क हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम हलाक हो जाएंगे। मगर अचानक हजरत हमने कहा या गौस अल-मदद, तो सामने से एक हाथ आया जिस हाथ को हम सबने देखा है और उस हाथ ने हमारी कश्ती को डूबने से बचा लिया, उससे किनारे लगा दिया, हम सब बच गए। हुजूर आपसे पूछना चाहते हैं वो हाथ किसका था? गौसे आजम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे मुरीदों, क्या करोगे जान करके? वो हाथ को पहचान करके क्या करोगे? कहा हज़रत कुछ नहीं करेंगे, बस हम जानना चाहते हैं कि हमें बचाने वाला कौन था, हमें जिंदगी देने वाला कौन था, हमें डूबने से बचाने वाला कौन था? अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं ठीक है, फिर किसी मौके में हम तुझे बता देंगे। वो सारे मुरीदीन हुजरे से बाहर आए, सोच ही रहे थे कैसे बताएंगे ये, इनको तो मालूम होगा क्योंकि ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का मुकद्दस बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का बंदूसीदा बंदा है, इनको मालूम होगा, मेरे पीरो मुर्शिद को मालूम है ये शहंशाह बगदाद है, मगर बता नहीं रहे हैं। बहाने टाल करके आपने बहाने लगा दिया कि फिर किसी मौके पे कभी आना तो हम बता देंगे। अल्लाह अकबर। दूसरे दरवाजे पर कुछ मदरसे के तलबा खड़े थे, उन लोगों ने देखा कि ये लोग कहीं दूर से आए हुए हैं, बहुत परेशान हैं। वो तलबा जो मदरसे के लड़के थे वो सब करीब आए। आने के बाद उन लोगों ने कहा आप लोग कहां से आए हो? कहा बहुत दूर 200 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा अपने पीरो मुर्शिद से मिलने के लिए आए हैं, गौसे आजम से मिलने के लिए आए हैं, शहंशाह बगदाद से मुलाकात करने के लिए आए हैं। कहा आप लोग परेशान लग रहे हो? कहा परेशान नहीं है, अपने पीरो मुर्शिद से ये पूछना चाहते हैं क्योंकि 2 महीने पहले हम लोग एक कश्ती पे सवार थे, कश्ती दरिया में डूबने वाली थी, हम सब हलाक हो जाते, हम सब मर जाते। उस वक्त हमने देखा कि एक हाथ आया, उस हाथ
हमारी कश्ती को किनारे लगा दिया, हम सबको डूबने से बचा लिया। अल्लाह अकबर। उन तलबा ने देखा था 2 महीने पहले गौसे आजम की बारगाह में इल्म हासिल कर रहे थे, पढ़ रहे थे, अचानक सर्दी का वक्त था, गौसे आजम चादर ओढ़े हुए थे, 2 मिनट के लिए हाथ बाहर था, 2 मिनट के लिए आपने चादर के अंदर अपने हाथ को कर लिया, और जैसे हाथ को अंदर किया है और 2 मिनट के बाद बाहर जब आपने हाथ को लाया तो लड़कों ने, तलबा ने देखा कि आस्तीन से पानी के कतरात टपक रहे थे, खाइयों से पानी के कतरात टपक रहे थे। जब इन तमाम तलबा ने देखा तो रजिस्टर में नोट कर लिया, तारीख नोट कर ली, दीन नोट कर लिया, वक्त नोट कर लिया। अब उन मुरीदों से पूछ रहे हैं मदरसे के तलबा, ये बताइए कि वो वक्त क्या था, वो दीन क्या था, वो दीन कौन सा था, वो कौन सी तारीख थी। अल्लाह अकबर। तो मुरीद, हम उन तमाम मुरीदों ने कहा फला दिन, रजिस्टर में खोल करके तलबा ने देखा, कहा दीन जो कह रहे बिल्कुल वही दीन है। कहा वक्त बताइए, कहा फला वक्त, कहा जो वक्त बता रहा है ये वही वक्त हम लोगों ने नोट किया है। जो तारीख पूछा गया, तारीख बताइए, तारीख जो उसने बताई है वही तारीख लिखी गई है। अल्लाह अकबर। अब मुरीदों ने कहा, उन मदरसे के तलबा ने कहा कहीं मत जाइए, अगर आपको दोबारा वो हाथ दिखा दिया जाए तो क्या उस हाथ को पहचान लोगे। उन तमाम मुरीदों ने कहा वल्लाह, दोबारा जब हम वो हाथ देखेंगे तो यकीनन हम उस हाथ को पहचान लेंगे। अल्लाह अकबर। तलबा ने कहा कहीं मत जाइए, अंदर तशरीफ ले जाइए, और जाने के बाद कहिए हजरत अब हम लोग यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, जा रहे हैं, बस आखिरी बार मुसाफा कर लीजिए। और जब मुसाफे के लिए चादर से बाहर हाथ को निकाले तो गौर से देखना ये वही हाथ तो नहीं है जिस हाथ को तूने समंदर में देखा था। वो मुरीदीन हाजिर हुए, कहा अब अभी तक आप लोग गए नहीं। गौसे आजम मुस्कुराने लगे, कहा हजरत बस जाने ही वाला हूँ। कहा फिर जाइए, कहा आखिरी बार मुसाफा तो कर लीजिए। जैसे मुसाफे के लिए चादर से गौसे आजम ने अपने हाथ को बाहर निकाला है, 200 मुरीदीन तड़प गए और तड़प करके कहा हजरत जिस हाथ को हमने समंदर में देखा था किसी और का हाथ नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी ये हाथ का हाथ है जिस हाथ ने हमें जिंदगी दी है, जिस हाथ ने हमें बचाया है, जिस हाथ ने हमें मरने से बचाया है, जिस हाथ ने हमें डूबने से बचाया है। गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदो सुनो, तुम तो सब मेरे मुरीद हो, मगर दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी खित्ते से, किसी भी इलाके से अगर कोई मुझे मोहब्बत से मुझे पुकार लेता है, मैं बगदाद में रहता हूँ, बगदाद में रहकर उसकी मदद करता हुआ नजर प्यारे गौसे आजम शहाबुद्दीन साहब किबला। गौसे आजम फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कि राई के दाने को अपनी हथेली पर देख रहा हूँ। तो मियाँ जब खैर मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद करता हुआ नजर आता हूँ। तुम तो मेरे मुरीद है, मुझे मालूम था कि तुम डूबने वाले हो, हलाक होने वाले हो, जैसे तूने मोहब्बत से पुकार लिया है मैं आकर के मैंने तेरी मदद कर दी है, तेरी जिंदगी बचा ली है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गौसे आजम बगदाद में है, हम सब बैठे सलीम भाई के घर में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम देख रहे हैं। इसलिए फरमाते हैं पूरी दुनिया को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कि राई के दाने को अपनी हथेली पर देख रहा हूँ। आज ये वक्त नहीं है कि तफसीली कोई गुफ्तगू हो, इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी आपके सामने और तकारीर और खाने मुस्तफा होगा। अब आइए सलातो सलाम का नजराना पेश करें। वाखिरु दावाना।